Assalamu alaikum, dear students, and very good morning to all of you. Yesterday we were talking about the excretory products in plants. So our topic excretion or excretory products or excretion in plants is completed. Today we will discuss another SLO or topic, that is thermoregulation in plants. So thermoregulation, actually it is an other aspect of homeostasis. So in thermoregulation we will discuss how temperature is maintained by different types of the plants and how they face the different temperatures at different places or habitats. So our SLO is describe adaptations of plants to low and high temperature. We have to discuss the adaptations in plants which are developed by the plants at low and high temperature. It means how they face the low temperature and high temperature during the critical conditions. So for this purpose, first of all, let me tell you about the adaptations, because our SLO is adaptation of plants. प्लांट्स में एडाप्टेशन चेंजेस कौन सी आती हैं जिसके तहत वो हाई या लो टेम्परेचर में अपने आप को कोप या मेंटेन कर रहा होता है. एडाप्टेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ चेंज by which an organism or a species becomes better suited to its environment, or in other words, the change with respect to the environment. हम अपने तरफ से ये भी इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज विद रेस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज करना. यहाँ वरी सिंधी में सही चवंदा आहियूं तव्हां लफ़्ज़ ॿुधो हूंदो हिकिड़ो, जहिड़ो देश तहिड़ो वेस. यानी जीअं माहौल हुजे उअं ई थी वञणु. प्लांट बि अहिड़ी सिचुएशन खे मेंटेन करण जे लाइ उन जहिड़ा यानी माहौल जहिड़ा थियण जी कोशिश कंदा आहिनि त जीअं उहे पंहिंजो पाण खे सर्वाइव करे सघनि. ओके, सो in other way, another definition, any alteration in the structure or function of an organism or any of its part that results from natural selection and by which organisms becomes better fitted to survive and multiply in its environment. Yani whenever organism change itself, alter itself or any of its parts so that it becomes more suited to its environment. Here we use natural selection. You know, according to evolution, nature selects those organisms which are more fit. नेचर उसको सिलेक्ट करती है जो उसके लिए ज्यादा फिट होगा. तो वो नेचर के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं, एडॉप्ट कर रहे होते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज adaptation. Okay, so you could see, in other words, you could see when you are going to very cold regions, for suppose Gagan, Naran and Murray Hills, तो वहाँ पर टेम्परेचर लो है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है आजकल. अगर आप जाएंगे तो जाहिर है you have to adapt yourself with respect to your food, with respect to your cloth, and even with respect to your habits.
तो ये एडाप्टेशन है। या the previous topic we have already discussed the different types or groups of the plants is the halophytes develop salt glands in it, they have to adopt accordingly. Xerophyte plants, they have to adopt accordingly so that they can save the water. So in this way, adaptation we can define it. So because our topic is we have to describe the adaptations, or we have to describe that how these plants face these conditions, means low and high temperature. So let's start. First introduction. Okay, temperature, it is very important factor, or it is very important environmental factor in plant growth and development, even for each and every organism, because it actually governs the rate of photosynthesis and respiration. इसीलिए ये बहुत ही अहम फैक्टर है। इकोलॉजी के बेस पर भी टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, because temperature is a biotic factor which affects on biotic factors. Number two, depending on its origin, means where they are, at which region they are, means tropical or temperate. Each plant species has temperature range where it grows best. Depending on its origin, जिसकी जो origin है उस हिसाब से हर जानदार यानी हर प्लांट जो है वो उस हिसाब से ग्रो करता है अपनी रेंज के हिसाब से. In whole world there are the many regions which are cold, many regions which are cold throughout the year or throughout half a year. So there are the different regions where the different plants are present. Temperature greatly influences plant hardness, fall color and senses. Fall color and senses, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है प्लांट के हार्डनेस पर. और इवन ये कि fall color हम कहते हैं मेरा, whenever chlorophyll breaks, green color disappears and yellow and orange colors become visible, in autumn season. और फिर क्या होता है, लीफ फॉल हो जाती है. टेम्परेचर इस तरीके से भी इफेक्ट करता है प्लांट्स को. A plant's hardness can be determined, and determines its ability to withstand. Plant hardness ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं किस तरीके से, its ability to withstand the average minimum temperature of the region without damage or death. यानी जहां पर प्लांट है, टेम्परेचर को जहन में रखते हुए हम उसकी हार्डनेस मालूम कर सकते हैं बगैर के प्लांट की डेथ या डैमेज हो जाए. एवरेजली हम मालूम कर सकते हैं कि ये प्लांट कितना हार्ड है और किस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है या नहीं. See, so first of all, let's talk about low temperature. Means how plants cope the situation in low temperature. Though low temperature is not so harmful, or it is not a serious problem in plants as the high temperature is. जैसा हाई टेम्परेचर खतरनाक है प्लांट के लिए, उस हिसाब से लो टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं. लेकिन फिर भी जो लो टेम्परेचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं प्लांट्स के साथ, वो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट किए हैं. कोल्ड में, फिर फ्रीजिंग में, दो बोथ आर कोल्ड कंडीशन.
कोल्ड मीन्स जनरली जैसे कोल्ड होती है विंटर में। फ्रीजिंग मीन्स सुपर कोल्ड या फिर उससे भी ज्यादा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ जिस टाइम यानी पानी कन्वर्ट हो जाए बर्फ में। सो कौन से चीज जो है वो प्रॉब्लम्स अपीयर हो सकते हैं। सी कोल्ड में देयर में बी द लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज as a result of low temperature in plants, impairment of photosynthesis, photosynthesis की एक्टिविटीज भी कम हो सकती है, फोटोसिंथेसिस उतना डेवलप नहीं हो सकता या उतने रिएक्शंस नहीं हो सकते जैसे आमतौर पर होते हैं। रिड्यूस न्यूट्रिएंट्स अपटेक या फिर न्यूट्रिएंट्स अपटेक थ्रू जाइलम कम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ये तो कोल्ड में कंडीशंस हो गई। आफ्टर फ्रीजिंग में क्या हो सकता है, फ्रीजिंग में आइस फॉर्मेशन हो सकती है सेल्स के अंदर। जब सेल्स के अंदर आइस फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होगी। जो फ्लूइड है या फ्लूइडिटी नेचर ऑफ सेल दैट मे डिस्टर्ब, और अगर फ्लूइडिटी डिस्टर्ब होगी तो जाहिर है डिहाइड्रेशन होगी। तो these issues may develop because of low temperature in plants. So how they cope this situation, how they maintain this situation means low temperature. See, to face the freezing point is the most common strategy for plants to survive during the freezing stress. प्लांट्स क्या करेंगे, टॉलरेंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे या टॉलरेंस डेवलप करेंगे ताकि वो फ्रीजिंग स्ट्रेस को फेस कर सकें। उसके लिए क्या करेंगे, द एबिलिटी टू इंक्रीज फ्रीजिंग टॉलरेंस, वो टॉलरेंस ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करेंगे फ्रीजिंग के अगेंस्ट। इन रिस्पॉन्स टू लो नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी कूल टेम्परेचर में क्या करेंगे, कोल्ड कोल्ड एक्सलिमेशन करेंगे यानी एडॉप्टेशन करेंगे कोल्ड के हिसाब से, विच इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू ओवर विंटर इन टेम्परेट हैबिटेट्स। जो आमतौर पर आम टेम्परेचर, टेम्परेट मीन्स मॉडरेट, टेम्परेट हैबिटेट्स में रहते उसको एडॉप्ट करना, एक्सलिमेशन मतलब एडॉप्ट करना, वो प्लांट्स के लिए जरूरी है ओवर विंटर के दौरान उसको मेंटेन करने के लिए। तो वो क्या करेंगे ओवरऑल, this what do you mean by this point, कि plants try to develop tolerance against the freezing point and non-freezing temperature, keeping in view the temperate habitats. Number 2 point, low temperature actually करता क्या है, it affects the fluid nature or fluidity of the plasma membrane of the cell or cell membrane. And low temperature ultimately affects the fluid nature of the plasma membrane. You know, plasma membrane, what is plasma membrane? It is the borderline, but its nature is fluid, not a solid. So ज्यादातर वो fluid nature के हैं, तो उसकी fluid nature को that fluid nature may be affected because of low temperature. And because of this condition, or because of effects on fluidity of plasma membrane, there could be problem in transportation of solutes across the membrane. You know, cell membrane is also plays very important role is a semi-permeable membrane or selective permeable membrane. So इसका काम कुछ मॉलिक्यूल को सिलेक्ट कर ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो because of
low temperature and because of effect of fluidity nature of plasma membrane, because of low temperature, then what happens? The transportations may be affected. Transportation of solutes may be affected across the cell membrane. क्यों affected होगी? Because there could be a formation of crystals, ice crystals. तो ice crystals बन सकते हैं उनके अंदर. Then under such conditions, plants increases. तो क्या करेंगे उसके लिए? जब भाई plants temperature low हो गया and then fluid nature affected हो गई, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे सेल के अंदर. जाहिर सी बात है सेल के जो नॉर्मल प्रोसेस है वो नहीं हो सकते, नहीं होंगे. तो ड्यूरिंग दिस कंडीशन हाउ प्लांट्स adopt itself or change itself or inside functions, it actually increases the proportion of unsaturated fatty acids. Unsaturated fatty acids वो ज्यादा डेवलप करेगा. Fats, simply fats. There are the two types, unsaturated and saturated. Saturated और unsaturated क्या है? Saturated जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट ना हो कार्बन्स के अंदर. मेक श्योर कि saturated and unsaturated, these are organic compounds. And if they are organic compounds, it means they have a carbon as a basic element and they contain the covalent bond. But in saturated compound, there is no double bond, whereas in unsaturated, there is a double bond. So they increase the production of the unsaturated fatty acids, which is already present in the plants, which prevents the crystal formation, जो कि crystal formation से बचा सकते हैं plants को. So अब ये unsaturated क्या है, क्या करते हैं वैसे plants के अंदर? वैसे तो हम डेली लाइफ में भी इनसे ये एज अ फूड यूज करते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर क्या करते हैं? प्लांट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सो एक्चुअली दे हेल्प इन बायोसिंथेसिस, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं और रेगुलेशन करते हैं प्लांट के अंदर इन डिफरेंट वेज. मोस्ट ऑफ प्लांट्स मेजर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर oleic acid, linoleic acid and linolenic acid. These are the three major unsaturated fatty acids which are found usually in plants. लेकिन ये है क्या, क्यों कहते हैं हम इनको unsaturated? इसलिए कहते हैं कि because these fatty acids in which there is at least one double bond between the carbon atoms. कम से कम एक डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में होनी चाहिए. तो इसीलिए कार्बन की भी या कोई भी डबल बॉन्ड इसके अंदर होनी चाहिए. ठीक है. सो I have given you here the structural formulas of these three groups of unsaturated fatty acids. See, fats, these are made up of fatty acids. And make sure that these molecules or organic compounds are macromolecules. So you could see here कि यहाँ पर भी अगर इस लिनोलिक एसिड का एग्जांपल दें, ये रेड कलर जो है वो कार्बन शो कर रहे हैं और ये जो वाइट कलर है ये हाइड्रोजन शो कर रहे हैं और ये जो ब्लू कलर है ये ऑक्सीजन शो कर रहे हैं. तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और इजी वे में ये फार्मूला है, स्ट्रेट चेन है इसकी. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है. ये जो एंगल्स शो कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन्स अटैच्ड हैं. सिमिलरली अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है. सो वी कैन से हियर कि these are the unsaturated fatty acids and these unsaturated fatty acids have
at least one double bond in it. So again, प्लांट्स के अंदर लो टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं या बन जाते हैं। उसको उससे बचाव के लिए प्लांट्स कैसे अडॉप्ट करते हैं, फैटी एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। और furthermore, as a result of very low temperature at freezing point, crystals are formed in the cells, as I have already told you. To avoid such freezing point temperature, plants develop the freezing tolerance in a way that composition of solutes altered and ice crystals are formed in the cell wall rather than cytosol. यानी कैसे ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हेल्प करेंगे या कैसे अपने आप को या फ्लूइड की नेचर चेंज करेंगे, अल्टर करेंगे कि उनकी क्रिस्टल्स तो बनेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना लो है, फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गया है, तो बनेंगे सही, लेकिन वो साइटोसोल के अंदर नहीं। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय साइटोसोल? द फ्लूइड्स फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। यहाँ पर टू वर्ड्स कुछ इस तरीके से, साइटोसोल मतलब फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल, वेयर इज साइक्लोसिस the movements found inside the cytoplasm, that is cyclosis, cyclic movement of cytoplasm, that is cyclosis, whereas this is a cytosol, means the fluid found inside the cytoplasm. तो साइटोसोल के अंदर वो नहीं बनेंगे, बल्कि कहाँ बनेंगे, सेल वॉल के अंदर। इन दिस वे जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो भी बहाल रहेगा, और फ्लूइडिटी नेचर जो है साइटो सेल मेम्ब्रेन की और साइटोप्लाज्म की वो भी अफेक्टेड नहीं होगी या बिल्कुल कम होगी। हाउएवर साइटोसोल इज सुपर कोल्ड, लेकिन ये नहीं कि साइटोसोल को कुछ भी नहीं होगा, वो कूल होगा लेकिन फ्रीज नहीं होगा और आइस भी नहीं बन सकेगी। You could see here the figures of the cell. यहाँ पर मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो हमने शुरू में स्लाइड पढ़ी कि कौन से इश्यूज डेवलप हो सकते हैं बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। तो वो जो इश्यूज हैं उसमें आप देखें, ये जो है ये आइस क्रिस्टल्स बन रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और आइस क्रिस्टल के बनने के बाद फिर क्या हो सकता है, ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी प्रोटोप्लाज्म के अंदर, डिहाइड्रेशन, क्योंकि बर्फ जम जाएगी, क्रिस्टल्स जम जाएंगे, then there could be effects on the transportation of the solutes. And you know this is the cell wall. तो अब क्रिस्टल जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बन जाएंगे, जब प्लांट्स अपने आप को अल्टर करेंगे सेल को या फिजियोलॉजिकली अल्टर करेंगे, तो ये जो सेल वाल है यहाँ पर ये जो बन सकते हैं आइस क्रिस्टल, जो कि बाद में खत्म हो सकते हैं। So that was all about low temperature, कि how plants actually maintain or adopt themselves in low temperature. ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं हाई टेम्परेचर, हाउ प्लांट्स adopt or face in high temperature. See, high temperature is more harmful than low temperature, which is we have already discussed. क्यों? क्योंकि क्यों ज्यादा खतरनाक है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली इसको डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइम्स को। हाई टेम्परेचर नॉट ओनली वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स बट इट इज आल्सो हार्मफुल फॉर वी पीपल, फॉर अदर एनिमल्स टू, क्योंकि ये प्लांट्स हो या एनिमल्स, ये
एंजाइम्स को लो हाई टेम्परेचर इतनी हद तक खतरनाक हो सकता है कि वो एंजाइम्स को ही डीनेचर कर दे। और अगर एंजाइम्स ही डीनेचर हो गई तो ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म या फिर जो दूसरे रिएक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। अगर वो रिएक्शंस, उन रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी या फिर वो नहीं हो सकेंगे तो जाहिर सी बात है उनका इफेक्ट हमारे और प्लांट से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पर पड़ेगा। और अगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पर पड़ेगा तो जो नॉर्मल एक्टिविटीज है फोटोसिंथेसिस या एनिमल्स की अगर बात करें ग्रोथ वगैरह या फिर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और there could be rise of abnormal conditions and these abnormal conditions could be the fever or could be the destroy of the parts of plant's body. One of the way to cope with this situation is transpiration. एक तो ये तरीका है इस हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करना या मेंटेन करना। ट्रांसपायरेशन प्लांट ज्यादा करते हैं, जब उनको गर्मी ज्यादा लगती है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रांसपायरेशन को हम कूलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ट्रांसपायरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। जब गर्मी ज्यादा होती है तो वो ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन इज द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं तो जिसकी वजह से प्लांट्स अपने आप को बचा सकते हैं हाई टेम्परेचर। और इसी तरीके का जो लेट मी टेल यू कि इसी तरीके का ही प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर भी है जिसको हम पर्सपायरेशन कहते हैं, यानी पसीना आना। वो देखें जब गर्मी ज्यादा होती है तो ज्यादा पसीना आता है और दिस इज इन फेवर ऑफ आवर बॉडी। ज्यादा पसीना आता है तो इसका मतलब गर्मी या टेम्परेचर रिलीज हो रहा होता है और हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं हमारी बॉडी। तो उस वक्त क्या होता है, पसीना आने के बाद आप जब भी शेड में जाएंगे या हवा में जाएंगे तो आप कूल फील करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कैन से दीज आर द कूलिंग प्रोसेस। सो वन वे टू कोप दिस सिचुएशन, टू हैंडल दिस सिचुएशन, क्या करते हैं प्लांट्स? ट्रांसपायरेशन। बट 840 degree centigrade or above, plant cell synthesize heat shock protein. Another way to handle this situation, plants adopt themselves and they start to produce heat shock protein जिसको हम HSPV कहते हैं। और वो क्यों सिंथेसाइज करना शुरू कर दे? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं एंजाइम्स को एंड अदर प्रोटीन्स को फ्रॉम डीनेचरिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हीट शॉक प्रोटीन्स बनाना शुरू करते हैं वो प्लांट्स और जिसकी वजह से दूसरे एंजाइम्स महफूज रहते हैं और एंजाइम्स भी और प्रोटीन्स भी, क्योंकि एंजाइम्स भी खुद असल में प्रोटीन्स ही है। 840 degree centigrade or above, it means below 40 degree centigrade plants they fulfill their activities, वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं below 40 degree centigrade। Furthermore, because of production or synthesis of heat shock proteins, the normal proteins actually suppressed। नॉर्मल जो आमतौर पर दूसरी प्रोटीन्स होती है वो स्टॉप हो जाती है बनना या वो नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उस वक्त हीट शॉक प्रोटीन्स बन रहे होते हैं। अगर दूसरे प्रोटीन्स और एंजाइम्स बनेंगे तो वो भी हाई टेम्परेचर के बदौलत डीनेचर हो सकती हैं, खत्म हो सकती है। तो इसीलिए देयर इज अ नीड ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स। But the plants produce a unique set of low molecular mass proteins जिसको हम हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। यानी हीट शॉक प्रोटीन्स क्या है?
These are the low molecular mass proteins. लो मोलिकुलर प्रोटीन्स हैं और ये प्रोड्यूस होती हैं प्लांट्स में, यानी प्लांट सिंथेसाइज करते हैं so that they can face, they can cope the situation of high temperature. Make sure कि उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं, हीट शॉक प्रोटीन 60, हीट शॉक प्रोटीन 70, हीट शॉक प्रोटीन 90, ये प्रोटीन्स की कैटेगरी है हीट शॉक प्रोटीन की। तो ये क्या है, ये उनका मास नंबर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है हीट शॉक प्रोटीन्स का। हीट शॉक प्रोटीन 60 मतलब हीट शॉक प्रोटीन 60 किलो डाल्टन में हम इसको शो करते हैं, ये इनका यूनिट है। सो most of the protein, most of the heat shock proteins functions to help the cells endure heat stress by acting as a molecular chaperones, protecting essential enzymes and nucleic acids from heat denaturing and misfolding. So what do you mean by this? कि भाई मोस्टली हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो सेल को हेल्प करते हैं टू टॉलरेट इट। किसमें टॉलरेंस, यानी दे इंक्रीज द टॉलरेंस अगेंस्ट स्ट्रेस ऑफ हाई टेम्परेचर, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि ये प्रोटीन यानी हीट शॉक प्रोटीन्स दे फैसिलिटेट द अदर प्रोटीन्स in proper folding so that they get less effects of high temperature. वो यानी प्रॉपर फोल्डिंग करने में हेल्प करते हैं शॉक प्रोटीन्स, या फिर स्टेबलाइजिंग में हेल्प करते हैं ये हीट शॉक प्रोटीन, इनको जो दूसरी प्रोटीन्स होंगी, सो दैट हीट डीनेचर एंड मिसफोल्डिंग, यानी इस तरीके से क्या होगा कि खुद ब खुद मिसफोल्ड नहीं होंगी वो प्रोटीन्स और डीनेचर भी नहीं होंगे। दे आल्सो प्रिवेंट डिसअसेंबली ऑफ मल्टीमेरिक एग्रीगेट्स ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस। इससे और क्या होगा कि जो दूसरी प्रोटीन्स हैं या दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जो बंडल के तरीके में जमा होते होंगे, उनसे भी हम ये प्रिवेंट करेंगे क्या, हीट शॉक प्रोटीन्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दो देयर इज one or two slides are still remaining, or very few words are remaining, but we will discuss in coming class. If you have any question regarding this, you may ask. जी बेटा।